آتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمہیں سے اے مجاہدو دین کو ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاویدانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ مسجد لال والے، کہ طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا، چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا، اگر جرم ہے دین حق کی حفاظت تو یہ جرم 100 بار کرنا پڑے گا۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسر و کیسر کچھ بھی نہیں، اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، عدو کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم
फकीह मिल्लत उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना ईरजी सैफुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, लायक सब ताज़ीम तकरीम अकाबिर उलमा इकराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली बापर्दा पासमत माएँ, बहनें और बेटियाँ, आज का ये अज़ीम शान पुरवकार सालाना तारीख साज जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा से पहले से शुरू है। नमाज जुमा के बाद भी ये नशिस्त जारी है। कल भी परसों भी 3 दिन 3 रात मुसलसल अकाबिर असलाफ अहले हक उलमा शुआरा कुर्रा खुतबा तशरीफ लाते रहेंगे, मुझको और आपको हक सुनाते रहेंगे। शायद ये जामिया के एजाज़ है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा अजीम इज्तिमा दीनी मदारिस के हवाले से और इतने दिन तक और दिन रात की इतनी बड़ी नशिस्तें किसी जगह पर नहीं होती। ये इस इदारे का एजाज़ है। मैं समझता हूँ कि दीनपुर शरीफ की रूहानी शख्सियात, शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती की दुआएं और फिर इसी तरीके से हमारे उस्ताद हजरत शेखुल हदीस मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरखास्ती, हजरत मुफ्ती साहब और इन तमाम उलमा और दाएं बाएं बैठे हुए इन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन कहें। मैं हजरत कारी साहब की तशरीफ आवरी तक बड़ी मुख्तसर ज़रूरी और अहम किस्म की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सब हज़रात तवज्जो करेंगे तो शायद मेरे लिए भी बड़ी सआदत है कि इस इज्तिमा में इस मौके पर मुझे कुछ तफसील से आपसे बातें करने का मौका मिल रहा है। तवज्जो फरमाएंगे। हम अपने असातिज़ा के बाद जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो सबसे पहली बात उस्ताद हमें सुनाते और समझाते थे कि लिकुल्लि शैइन आफतुन वलिल इल्म आफात। हर काम जब भी कोई आदमी करता है तो उस काम में उस पर कोई न कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है। लेकिन जब इल्म सीखने वाला इल्म सीखने के मैदान में जाए, तालिबुल इल्म कुरान सुन्नत को पढ़ना चाहता है तो उस पर कोई एक आफत नहीं आती, उस पर आफात आती हैं, उस पर मुसीबतें आती हैं, उस पर आजमाइशें आती हैं, उस पर बलियात आती हैं, उस पर इम्तिहानात आते हैं। इस पर अगर गौर किया जाए तो इतनी आजमाइशें इल्म वालों पर क्यों, कुरान वालों पर क्यों, सुन्नत वालों पर क्यों, मसाजिद वालों पर क्यों, मदारिस वालों पर क्यों? इसका अल्लाह के महबूब ने पहले इशारा फरमा दिया था, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा। लोगों, उलमा नबुव्वत के वारिस हैं। नबुव्वत का वर्षा इल्म है, दराहम और दनानीर नहीं। ये इल्म नबुव्वत के वारिस बनते हैं। और जब कोई किसी चीज का वारिस बनता है, बाप जब अपने बेटा बाप की जायदाद का वारिस बनता है तो वो सिर्फ माल का वारिस नहीं बनता, जमीन का वारिस नहीं बनता, रकबे का वारिस नहीं बनता, उसके मकान का वारिस नहीं बनता। तवज्जो से समझना, जैसे चीजों के लेने का वारिस है ऐसे बाप के कर्ज चुकाने का भी वारिस है। उसके कर्ज चुकाने का भी, ऊंची बात से, अगर उसके जिम्मे कोई बाप के जिम्मे फर्ज हो, उसको अदा करने का बेटा जिम्मेदार है। उसके जिम्मे कोई कर्ज हो, अदा करने की वो औलाद जिम्मेदार है। उसकी कोई वसीयत हो, उसके पूरा जिम्मे करने की वो औलाद वारिस है। इसलिए कि जैसे वो माल लेने की वारिस है ऐसे कर्ज चुकाने की वारिस है। उलमा सिर्फ नबुव्वत के इल्म के वारिस नहीं, जो जो चीज नबी के साथ वाबस्ता होती है वही चीज इल्म नबुव्वत वालों की तरफ मुंतकिल होती है। अगर नबुव्वत का वर्षा इल्म है, उलमा के हिस्से में इल्म है। नबुव्वत का वर्षा तबलीग है, उलमा के हिस्से में तबलीग है। नबुव्वत का वर्षा जिहाद है, उलमा के हिस्से में जिहाद है। नबुव्वत का वर्षा शहादत है, उलमा के हिस्से में शहादत है। नबुव्वत का वर्षा कैदबंद की सऊबतें हैं, उलमा के हिस्से में कैदबंद की सऊबतें हैं। जो जो चीज नबी से उम्मत की तरफ मुंतकिल होती है उसका सबसे पहला मिस्ताक उस उम्मत के उलमा होते हैं। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अशद्दुल बलाइ अल अंबिया, सबसे बड़ी आजमाइशें, सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पर आई। और फिर फरमाया लमसल फल लमसल, जो जिस नबी के जितना करीब होता है उस पर उतनी आजमाइशें